दिख रही है बोन? यस मैम। बोन विजिबल है ना सभी को? क्लियरली दिख रही है? Yes, ma'am. Okay. So this is the another long bone that present in the forelimb in the forearm region. This is the bone of forearm region. We studied the bones of shoulder region, the bones of arm region, and this bone belongs to forearm region. Clear? Clear है? So this is the radius and the bone which is applied against the posterior lateral aspect. This portion is posterior. ये bone का, ये radius का anterior aspect है और ये इसका posterior aspect है. Clear है? जिस तरफ rod लगी हुई है that is the posterior aspect of the bone and जो front में है that is the anterior aspect. अभी हम बोन की जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पोस्टीरियर क्यों है, ये एंटीरियर क्यों है. बट बिफोर दैट, टू डिफाइन द टोपोग्राफिकल पोजीशन ऑफ अल्ना, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. ठीक है? एंड दिस वन इज लेटरल बॉर्डर. दिस वन इज lateral border. So the ulna is applied against the posterior lateral aspect of radius. Ulna is applied against the posterior lateral aspect of the radius. The radius ulna is the bone of the forearm region of the forelimb. Forearm region of the forelimb, and it is almost placed slightly obliquely in a direction or in vertical direction, vertically slightly obliquely. It is not clear cut directed and downward or forward or downward or backward. Clear? क्लियर है बोन? दिख रही है बोन सभी को? Yes, ma'am. Okay. So it is applied somewhat dorsal obliquely. Hello, man. Yes. It is applied dorso obliquely. This is the bone of the forearm region of the forelimb, and these two bones are situated in the forearm region, and the ulna is applied against the posterior lateral aspect of radius. Clear? The radius is articulate proximally with the humerus. यहाँ ऊपर humerus आएगी and distally with the carpal bones. नीचे carpals आएंगी. जैसे हम अपने एल्बो के नीचे जो देखते हैं तो रेडियस अल्ना है सिचुएटेड वहां पे और उसके नीचे कार्पल बोन्स आएंगी और ऊपर इट आर्टिकुलेट प्रॉक्सिमली विद द ह्यूमरस. क्लियर? फॉर डिस्क्रिप्शन, ये बोन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. It is somewhat flat in its proximal aspect and prismatic in a distal aspect. Proximally हमको यहाँ क्लियर कट दो सरफेसेस ही दिख रही हैं. एक ये सरफेस है एंटीरियर वाली और एक सरफेस है ये पीछे पोस्टीरियर वाली. ठीक है? लेकिन डिस्टल एस्पेक्ट में आते आते ये कुछ प्रिज्मेटिक हो जाती है. यहाँ आपको लेटरल सरफेस भी दिखती है. ये एंटीरियर हो गई और ये लेटरल सरफेस हो गई. ठीक है? So it is flat in its proximal aspect and in distal aspect it is somewhat prismatic. जब आप घोष की बुक रेफर करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको ये देखने को मिले कि रेडियस हैज 4 सरफेसेस. ठीक है? तो वहां उन्होंने बॉर्डर को इन टर्म्स ऑफ सरफेस डिफाइन किया है, लेकिन जब हम बोन देखते हैं तो 2 सरफेसेस क्लियर कट दिखाई देती हैं और 2 मार्जिन दिखाई देते हैं. ठीक है? सो दैट्स व्हाई फॉर डिस्क्रिप्शन the radius has shaft, 2 extremities, proximal extremity and distal extremity, and surfaces are anterior surface and posterior surface. 2 borders are lateral border जहां पे ulna applied है और दूसरा medial border.
समझ में आया? क्लियर है चीजें? The radius and ulna are the bones of the forearm region. The radius is a somewhat flat in its proximal aspect, prismatic in its distal aspect. For description, radius comprised of shaft and two extremities. Shaft has two surfaces, two borders in its proximal part and three surfaces in its distal part. Clear? Okay. यस मैम। क्लियर है ना सभी को? किसी को डाउट हो तो वहां पे इंटरप्ट करके फिर से पूछ सकता है. ऑल्दो वी विल रिवाइज द बोन्स अगेन एंड अगेन, सो इट विल बिकम क्लियर टू अस. मैम लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए. क्या चीज? लास्ट पॉइंट डिस्टल पार्ट का जो आपने कहा था एक बार फिर. डिस्टल पार्ट ना, एट डिस्टल पार्ट द बोन बिकम प्रिज्मेटिक. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें समवॉट प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन मिलेगा एंड देयर इज एडेड अनदर सरफेस दैट इज लेटरल सरफेस. ठीक है? मैम Yes. मैम इसमें टू सरफेसेस एंड टू बॉर्डर कौन से होंगे एक बार बता दीजिए. ये तो ये दिख रही है, एक सरफेस सामने दिख रही है, यस मैम. दैट इज द एंटीरियर सरफेस. यस मैम. Because the bone is placed in slightly obliquely manner, and this surface which is facing anteriorly towards head, that is anterior surface, and another surface is posterior surface. Anterior के just opposite posterior surface होगी. ठीक है? तो ऊपर की तरफ बोन जो है वो फ्लैट बोन है, दैट्स व्हाई इट हैज टू सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. क्लियर? यस मैम. बट जैसे जैसे हम डिस्टली जाते हैं तो बोन थोड़ा सा फैलने लगती है. ब्रॉड हो रही है बोन नीचे आकर के यस मैम. इन अ प्रिज्मेटिक मैनर, जैसे प्रिज्म होता है. ठीक? सो समवॉट ट्रायंगुलरली इट एक्सपांड, एंड ट्रायंगुलरली एक्सपांड करेगी तो इसकी तीन सरफेसेस हो गई. ठीक है? यस मैम. सो lateral surface, anterior surface and posterior surface. So distally another surface is added, that is lateral surface. Clear? यस मैम. ठीक. So it comprised of two surfaces, three borders and sorry, two surfaces, two borders. हेलो Yes. मैम ये डिजिटल पार्ट में मतलब तीन सरफेस पाए जाएंगे क्या? हाँ, distal part में they said that there is another surface, that is the lateral surface. यस मैम, थैंक यू. ठीक है? ठीक है मैम. Clear? Okay. So the anterior surface को जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो anterior surface को क्या टर्म यूज करते हैं? From carpal onward, anterior surface is known as what do you mean by volar surface? volar surface से क्या समझ में आता है? Anybody from the class? What do you mean by volar surface or palmar surface? मैम जो सरफेस पाम की तरफ होती है टुवर्ड द पाम, हथेली की तरफ, वो पामार. और Toward the palm. Palm means? हथेली की ओर. हाँ? मैम एर्थ की ओर जो फेस करती है उसको पामार. किसकी तो और फेस करती है? पामार सरफेस. पामर सरफेस किसकी तरफ फेस करती है? एर्थ की तरफ, और जो उसके अपोजिट साइड वो बोला. नहीं. नो मैम. हाँ बोलो. मैम जो एंटीरियर सरफेस होती है उसको डॉर्सल बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर होती है जो पीछे की तरफ टेल की तरफ होती है उससे पाल्मार या वोलार बोलते हैं. वेरी गुड. सो इन द जब हम मैनस रीजन में जाते हैं तो एट दैट टाइम द एंटीरियर सरफेस इज नोन एज डॉर्सल सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस इज नोन एज
वोलार और पामार। जैसे हमारा हाथ है तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? दिस इज द रीजन ऑफ Palm. पाम, ठीक है ना, ये रीजन पाम है। और इसको क्या बोलते हैं? दैट साइड इज नोन एज पोलर। कभी सुना है इसको वोलार बोलते हुए? ये रीजन हमारा डॉर्सल रीजन है एंड दिस रीजन इज पाम और पामा रीजन, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो हमारा ये रीजन जो है वो डॉर्सली फेस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज डॉर्सल। एंड ये पोर्शन जो है दैट इज द पाम दैट क्रिएट द पाम, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज पाम और वोलार, ठीक है। तो लाइकवाइज एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में ये हिस्सा ऐसा डॉर्सल तो हुआ नहीं, इट इज समवॉट ऑब्लिकली अरेंज, तो इस एरिया को उन्होंने बोला डॉर्सल। एंड उसके अपोजिट जो है द पोस्टीरियर सरफेस इज नोन एज पोलार और पामार इन केस ऑफ फोरलिम्ब एंड प्लांटार इन केस ऑफ हाइंड लिम्ब। हाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी कभी कभी डॉर्सल सरफेस या वोलार सरफेस टर्म यूज कर ली जाती है, ऑल्दो हियर वी डिस्क्राइब इट एज अ एंटीरियर and the surface opposite to it is posterior. Clear? So anterior surface is flat or somewhat rounded from side to side, ठीक है, smooth है, rounded है from side to side. Now come to the posterior surface. So posterior surface का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा? आपको अल्ना के लिए अटैचमेंट मिलेंगे। अल्ना अटैच्ड है, अल्ना जुड़ी हुई है ना? Yes, ma'am. Okay. So at the posterior surface, ulna is attached by the interosseous ligaments, ठीक है। And proximally and distally, two spaces are present. These spaces are known as interosseous spaces. ये दिख रहा है, एक जगह दिख रहा होगा छेद छेद सा, होल जैसा। At two parts of the bone, at the two parts of attachment, there is absence of interosseous ligament, and this space is known as interosseous space. Clear? So, जब posterior aspect में ulna present होगी, तो at the posterior aspect you will find the two interosseous spaces. मिलेंगे? And here you will find a groove at the attachment. You will find a groove, and on the posterior surface ये कुछ दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरी फिंगर जिसको पॉइंट आउट कर रही है, Yes, ma'am. क्या होगा ये? क्या होगा? Nutrient foramen, ठीक है। So at the above to the lateral groove there will be the presence of a nutrient foramen, and two interosseous spaces are present, and two interosseous spaces are connected by the lateral groove. Clear? ठीक है। The distal interosseous space is comparatively smaller than the proximal interosseous space. ये ऊपर है इसलिए इसको proximal interosseous space बोला, ये नीचे है इसलिए इसको distal interosseous space बोला। Clear? Sorry. Clear है? Proximal interosseous space, distal interosseous space, so you will find a two interosseous space. ये interosseous space जो है वो species demarcation का एक feature है. In case of horse, the ulna is very short और ये medially interrupt हो जाती है middle third तक आकर के. So in case of horse, you will find only single interosseous space. ठीक है। जबकि कैटल में जब हम देखेंगे तो दो इंटरऑशियस स्पेस हमको देखने को मिलेंगे। अगर अल्ना रेडियस के साथ अटैच्ड है then you will find two interosseous space in case of cattle while single interosseous space in case of horse. Clear? Yes, ma'am.
ओके, तो अब आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट हो सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस में, न्यूटन फोरामेन की पोजीशन में, प्रेजेंस ऑफ अल्लाह का रेडियस के साथ रिलेशनशिप, दो इंटरऑशियस स्पेस, न्यूटन फोरामेन की पोजीशन, क्लियर है सभी को? मैम ये न्यूटन फोरामेन की पोजीशन दोबारा बता दीजिएगा, आवाज कट रही थी उस टाइम। Newton foramen is present at its proximal aspect above to the lateral groove. There is attachment of the ulna with the radius, and here you will find a lateral groove, and the lateral groove जो है उसके just ऊपर की तरफ या proximal part of posterior surface of radius you will find a Newton foramen towards the lateral aspect. ठीक है, ये posterior surface हो गई, इसका ये lateral aspect हो गया, and इसके proximal part में। तो इस तरीके से हम न्यूटन फोरामेन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कम टू द बॉर्डर्स। फर्स्ट वन इज मीडियल एंड सेकेंड वन इज लेटरल। ठीक है, ये लेटरल बॉर्डर है, तो लेटरल बॉर्डर कैसे आइडेंटिफाई होगा? द साइड टुवर्ड्स विच अल्ना इज अटैच्ड। ठीक है, जिस साइड पे अल्ना अटैच्ड होगी वो लेटरल बॉर्डर होगा, एंड अपोजिट टू दैट इज द मीडियल बॉर्डर। ठीक, so medial border is somewhat concave and then convex. It is somewhat concave in its length. ऊपर की तरफ देखेंगे तो concavity टाइप की दिखती है। ठीक है, and this border is subcutaneous. It is largely subcutaneous. तो जब हम एनिमल बॉडी को पाल्पेट करने जाते हैं, लिम्ब अगर हम पाल्पेट कर रहे हैं, so the medial border of radius is the region where you will feel the bone. अदर एरिया जो होंगे वो मैक्सिमली मसल से कवर्ड होंगे। What do you mean by subcutaneous? Subcutaneous क्या समझ में आता है? Underneath the skin. Underneath the skin. Underneath the skin. ठीक है, so medial border of radius एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी साइट है जहां पर हम स्किन से जस्ट स्किन पे पाल्पेट करेंगे तो हमें क्या पाल्पेट होगा? बोन। वैसे हम स्किन पे हाथ लगाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? मसल। मसल मास टच होता है ना पहले। अगर आप वो Yes, बॉडी ma'am. को टच कर रहे हैं तो पहले आपको मसल मास टच होगा, और कुछ एरियाज होते हैं जहां पे हम बोन्स को फील कर सकते हैं। तो द मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस इज अ लैंडमार्क दैट इज सबकुटेनियस, और ये अपने बोन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है जब हम लाइव कंडीशन में बोन देख रहे हैं। लाइव कंडीशन में जब पूरा हमारे पास लिम्ब है, अभी तो सिर्फ बोन दिख रही है, जब लिम्ब पूरा देखेंगे, जब हम उसमें मसल देखेंगे, जब हम उसमें स्किन देखेंगे, तो हम जो है वो लार्ज, ये जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस है दैट इज द सबकुटेनियस एरिया, एंड इसको पाल्पेट कर सकते हैं। जस्ट सो एट द मीडियल बॉर्डर यू विल फाइंड द रफ एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल कहां पर रन करती है? व्हाट इज द साइट ऑफ रनिंग ऑफ ब्रेकियलिस मसल? किस रीजन में देखोगे कि ब्रेकियलिस मसल मिलेगी? Forearm region. फोरआर्म रीजन। फोरआर्म रीजन में ब्रेकियलिस मसल कहां से आ गई? musculospiral groove. मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, दैट इज द आर्म रीजन। आर्म रीजन में ब्रेकियलिस मसल मिलेगी, और ब्रेकियलिस मसल जो है वो यहाँ आकर के इंसर्ट होती है एट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस। ठीक है, जब हम वो मसल्स पढ़ते हैं तो मसल्स में यूजुअली एक स्टैंडर्ड फिनोमेना होता है कि एक बोन को वो कवर करेगी, उसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी से रन करेगी, और दूसरी बोन की प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में आकर के यूजुअली वो इंसर्ट हो जाती है। ये जनरल फीचर जो हमको याद करना है तो हम उस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। तो जैसे वो मसल हमारी ह्यूमरस बोन पे चल रही है, तो ये इंसर्ट आके कहाँ हो रही है? रेडियस पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकियलिस मसल इंसर्ट होगी। जब हम अभी प्रॉक्सिमल पार्ट पढ़ेंगे तो बाइसेप ब्रेकाई का इंसर्शन भी हमको यही मिलेगा। तो एट द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेडियस और एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेडियस यू विल फाइंड द इंसर्शन ऑफ द मसल्स विच रन इन द आर्म रीजन और विच रन्स ओवर द ह्यूमरस। Clear? So, at the proximal part of the medial border, there is the insertion of the brachialis muscle. ठीक है? Clear है? The lateral border is strongly curved. Lateral border is strongly curved, although no characteristic feature is present over the lateral border of the radius. Clear?
इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now come to the proximal extremity. Proximal extremity में क्या दिख रहा है? What you can see over the proximal extremity? कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं? मैम आर्टिकुलर सरफेस. आर्टिकुलर सर्फेसेस. तो आर्टिकुलर सर्फेसेस किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगी? ह्यूमरस. ह्यूमरस की डिस्टल एक्सट्रीमिटी के साथ. ह्यूमरस की डिस्टल एक्सट्रीमिटी में क्या क्या होता है? कॉन्डाइल. 2 condyles. कॉन्डाइल. कॉन्डाइल्स कौन कौन से होते हैं? लेटरल एंड मिडियल. Trochlea and ट्रॉक्लिया, कैपिटुलम या मीडियल और लेटरल. ठीक है, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 आर्टिकुलर एरिया और 2 आर्टिकुलर सरफेसेस. वहां पे कौन सा कॉन्डाइल बड़ा होता है? medial. medial. ये कौन सा होगा? ये कैसा है, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है मैम. It is larger than this one. So the medial articular surface is more large than the lateral articular surface. इसके बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि which side of the bone is medial and which side is lateral. Clear? अगर अल्ना अटैच नहीं है, हमने पोस्टीरियर सरफेस नहीं देखी है, at that time we also identified that which surface is medial and which surface is lateral, because the medial articular surface is comparatively larger than the lateral articular surface. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Now here you can see a ridge. एक सजाइटल रिज देखने को मिल रही है. दिख रही है? ये 2 आर्टिकुलर सरफेसेस दिख रही हैं. Yes, ma'am. इसके बीच में एक डिप्रेशन दिख रहा है, एक डिमार्केशन दिख रहा है कि 2 आर्टिकुलर सरफेस को कोई एरिया सेपरेट कर रहा है. Yes, ma'am. ना? So this is the median sagittal ridge, and at the sagittal ridge you can see the synovial fossa. Here you can see the presence of synovial fossa.